Who was Bismillah Khan? Who was? So, this chapter is a biography. This chapter is a biography. What is the difference between biography and autobiography? Will you tell me? So autobiography is type of biography in which writer also character biography, main character biography. Okay. And the biography is something about it. Other one write the story of other one. Very nice. Sit down. So, biography means if someone writes something about someone. Are you getting? Yes. If suppose A is a person, and A himself writes something about himself. So this is called autobiography. And if B is writing about A, it is called autobiography. Clear? Yes, sir. So the Sahnai of Bismillah Khan is a biography. Someone has written about Bismillah. Okay. Now, as we have already studied the first part of The Sound of Music, in which we had studied about Evelyn Glenn. What do we learn? What do we learn from that chapter? We learn that despite difficulties, a man or a person who is having a strong willpower can achieve anything. Are you getting? Yes, sir. Evelyn Glenn lost her hearing capacity. Despite it, she achieved the highest award in her life. Same thing happening here. Bismillah Khan was born in Bihar. Bismillah Khan was born in Bihar, in Dumrao state. Where is Dumrao state? It is in Buxar district. It is in Buxar district. Is it? So, Bismillah Khan never studied a lot as compared to the greatest one that we recall, like Einstein, Newton, etc., etc. He studied in elementary school. Elementary means गांव का school. So he studied in his village school, and right from his birthhood, he had been continuously playing gilli danda. And his favorite was that he played many instruments, like you might have heard, like jhanjhan, jhanjar, etc. He used to sing chaita. You might have heard the name of chaita. Yes, sir. क्या होता है chaita? Generally it is a folk song. So he was habituated in his childhood, and the main thing was that competition was puffed inside his heart as well as in his body. Competition. If a person is competitive, he or she cannot be stopped by anyone, whether you are getting resources or not. जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना गौर से. कंपटीशन अगर दिमाग में बैठ गया कि I have to be competitive, तो we are not going to see whether the fan is there or not, whether the benches are there or not, whether I am getting good food or not, because I got the hint of the competition in my mind, and I started thinking that what is my goal. If my goal is far away from me, I will start running behind my goal. And slowly, obviously you will reach to your goal. And those who are having plenty of things, plenty of resources, and always thinking, I have everything, I don't have to work hard, what will happen? The potential, the character will slowly omitted. Slowly
omitted from your character. हमें बहुत लग्जरी है, सारी चीजें बिना मांगे अगर मिलते जा रही हैं तो हमें उन चीजों की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब उन्हीं चीजों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के वो मिलता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। जब भी हम बड़ा सा एक एम्बिशन बनाते हैं, माइलस्टोन सेट करते हैं कि आई हैव टू बी वन डे IAS ऑफिसर, आई हैव टू बी समथिंग समथिंग, वॉट एवर आई डिजायर। हर इंसान का एक अपना गोल होता है। तो यू गॉट योर गोल एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल यू कंटिन्यूअसली वर्कड। एक दिन नहीं, जो एक दिन काम करते हैं उनसे कभी कोई उम्मीद मत करना कि एक दिन आए, 2 दिन आए और तीसरे दिन से फिर सो रहे हैं। आप एक दिन जाकर के हल्ला मचा दिए, जैसे ट्रेन में मजिस्ट्रेट चेकिंग होता है, एक दिन हो गई, 2 दिन हो गए, फिर 6 महीने तक नहीं होगा, तो कुछ लोगों को आदत पड़ गई, अरे ये तो फलाने डे को होता है और बाकी डे नहीं होता है। तो ये अगर रोज होगा तो सिस्टम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम पढ़ाई रोज करते हैं तो मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे पापा मुझे जगाएंगे तब हम बैठ के पढ़ेंगे, मेरा भाई मुझे जगाएगा, मेरी मम्मी मुझे जगाएगी तब बैठ के पढ़ने वाले। नो, बिकॉज इट इज इन माई माइंड कि मुझे मेरे साथ यही जाने वाला है होल लाइफ। तो अब बचपन से ही उनके अंदर थी कि बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न इन अ म्यूजिक फैमिली, ही वॉज बॉर्न इन अ म्यूजिक फैमिली। सो द लिगेसी, लिगेसी किसको बोलते हैं बच्चा, बोलो, लिगेसी किसको बोलते हैं, व्हाट इज लिगेसी? इनबिल्ट कैरेक्टर, लिगेसी मीन्स इनबिल्ट कैरेक्टर। सपोज सी your forefather was a teacher, your forefather might be a government officer, your forefather might be in defense sector. So your forefather, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं ना, हमारे पूर्वज, forefather मतलब पूर्वज, जिसको ancestor बोलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने, ancestors ने, अगर वो हमारे फौज में रहे हैं तो वो जितने भी बातें कर किए होंगे किस चीज की बात करेंगे, घर आके फौज की बात करेंगे। तो हमारे घर में किस चीज की लेगेसी पास आउट हो रही है, फौज की, रूल्स रेगुलेशन की, डिसिप्लिन की, पेट्रियोटिज्म की। अब हमारे घर में अगर टीचर हैं, रहे हैं, तो हमारे घर में सिर्फ पढ़ाई की बात चल रही होगी, हमेशा बात हो रही होगी ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, पढ़ लेना, मतलब सारे पढ़ने की बात। हमारे घर में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं है, कोई डिसिप्लिन की बात नहीं है, कोई पेट्रियोटिज्म की बात नहीं है, सिर्फ पैसे की बात है, तो ऑब्वियसली द लिगेसी विल कम आउट ओनली अबाउट द मनी। तुम्हें बचपन से सिखाया जाएगा हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। नेवर थिंक अबाउट एनी ऑनेस्टी, ये सब सो कॉल्ड, दे विल से दीज ऑल आर द सो कॉल्ड ऑब्स्टेकल ऑफ आवर लाइफ। उनके भी ये लाइन है कि ये हमारे जीवन की क्या है, कठिनाइयां हैं। ऑनेस्टी इज द ऑब्स्टेकल ऑफ आवर लाइफ। वो चुपके से अपने बच्चों को सिखाते हैं कि फॉर अदर्स यू से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ, बट इन देयर हाउसेस, इनसाइड देयर हाउसेस दे आर टीचिंग, सी ऑनेस्टी विल नॉट गिव यू ब्रेड, is it? Honesty will not give you prosperity. Honesty will only give you difficulties. कौन? Those who are only thinking about how to earn money. Wealth is the superiority. Whether your health is losing, no problem at all. But so ये सारी चीजें क्या है, legacy. If your forefathers were singer, obviously they used to sit together and sing song. जिनके घर में पूर्वज गाने बजाने के शौकीन हैं, कीर्तन गाने के शौकीन हैं, पूजा पाठ करने के शौकीन हैं, वो उनके घर में दादी, दादाजी, ये सब लोग कभी ना कभी आधे घंटे के लिए सुबह में, शाम में सारे बच्चों को एक जगह जमा करके कीर्तन गाते रहते थे, मंत्रोच्चारण करते, किताब बोलते थे, ये चलो धर्म का किताब है वो पढ़ो,
कुछ श्लोक वगैरह याद कराने लगते थे। संस्कृत के श्लोक बचपन में याद कराया जाता था। आज तुमको जब क्लास 5 तक आते आते कम से कम 50-60 श्लोक याद हो जाने चाहिए गीता के। ऐसी चीजें क्या होती थी, पास आउट होती थी। इसको कहते हैं लिगेसी। बचपन में सिखाया जाता था झूठ मत बोलना, किसी का सामान चोरी मत करना, जो तुम्हारा नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना, भले ही पड़ा हुआ है इंतजार कर लो, किसी का होगा, किसी जरूरतमंद इंसान का होगा। हो सकता है वो उसके लिए परेशान हो और तुम उठाकर लेके चल दिए। वापस आने के बाद वो क्या सीखेगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी फ्रॉड है, एक बार तुम्हारा कुछ गिर गया वापस नहीं मिलेगा। ये भी लीगेसी है। सो वी शुड हैव टू स्टॉप, वी शुड हैव टू स्टॉप सच काइंड ऑफ थॉट should not rise in our mind। हमारे दिमाग में ना उठे, इस तरह के ख्याल ही ना उठें। जब भी उठे मेडिटेट कर लो। बुरे ख्याल आते हैं आंखें बंद करके मेडिटेट कर लो। भटकने वाले ख्याल आते हैं आंखें बंद करके। There is a famous poem, उसमें counting 1 to 12, when you will go in class 12 you will find this particular chapter, counting 1 to 12. If you are feeling a stress, close your eyes and count 1 to 12. If you are angry, गुस्से में आ गए तो एक बार हाथें बंद करके, आंखें बंद करके किसी तरह 1 to 12 काउंट करो, थोड़ा गुस्सा डाउन हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि बहुत मतलब फ्रीक्वेंट मुझे एक्शन लेना है और मुझे ये नहीं पता कि एक्शन सही है या गलत, तो आंखें बंद करके एक बार थोड़ा सांस लो लंबा, 1 to 12 काउंट करो और तब ले लो एक्शन, चाहे वो गलत हो चाहे सही। ऐसे भी लेने ही वाले थे। हो सकता है कि जो झटके में लेने वाले थे, सामने वाले को तुमने बोलने का मौका नहीं दिया, गए और पलट करके छोटे भाई के ऊपर में थप्पड़ लगाने ही वाले थे। छोटा भाई कह रहा है ए सुनिए तो सुनिए, ए कर रहा है, तुमने सुना नहीं, थप्पड़ लगा दिया क्योंकि तुम्हें ईगो आ गया था। छोटा होकर मेरे से बहुत देर बात कर लिया, तो यू थॉट छोटी होकर के ऐसे बोल रही है, तो थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है तुम्हारे ही बेनिफिट का बात बोल रहा। तो वहां हमें क्या कंट्रोल करना है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द लीगेसी। द लीगेसी वाज पास्ड आउट फ्रॉम द फोरफादर्स, बिकॉज द फोरफादर्स ऑफ बिस्मिल्लाह खान वर म्यूजिशियन। तो अब जो इंसान म्यूजिशियन फैमिली में जन्म हुआ है, तो बचपन से ही उसने देखा है म्यूजिक। तो अब एक दुर्घटना होती है कि हिज फादर वॉज डैड इन हिज अर्ली ईयर्स। बचपन में ही उनके फादर का डेथ हो जाता है। दैट्स व्हाई ही वॉज सेंट टू वाराणसी। ही वॉज सेंट टू वाराणसी विथ हिज मदर। जब वो वहां पहुंचते हैं तो बनारस में उनके जो मामा थे, मैटरनल अंकल, ही यूज्ड टू प्ले शहनाई। ही यूज्ड टू प्ले शहनाई। तो वहां पे वो जब शहनाई बजाते थे तो इनको साथ में ले जाया करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। सो बिस्मिल्लाह खान यूज्ड टू बी कंपेनियन ऑफ हिज मैटरनल अंकल एंड ही यूज्ड टू सिट आवर्स एंड वॉचिंग कंटिन्यूअसली, मेडिटेटिंग कंटिन्यूअसली how he had been continuously singing the Shahnai. And Bismillah Khan later on used to sit at the bank of the river Ganga and used to listen the sound of river, sound of the flowing river. And he invented some ragas later on. बाद में आगे चलते उन्होंने बहुत अलग अलग रागास वगैरह भी इन्वेंट किए खुद। It was the first in 1933 when All India Radio was to be introduced and his maternal uncle was invited there and he went there where Ustad Fayyaz Khan, he came and patted his back and told that this boy would do the best in coming days. आने वाले समय में इस बच्चे का भविष्य जो है बहुत अच्छा है। He patted. And later on it was the first break when All India Radio was established in Lucknow and he was got a chance to play the Sahnai in between the intervals.
आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा, सुना होगा। दादा से पूछना, पापा से पूछना कि आपके बचपन में दूरदर्शन हुआ करता था। क्या हुआ करता था?